Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in my last lecture I explained you about communication. As I already told you that nowadays in today's time for communication internet is the must. Okay, so now in my today's lecture I am going to explain you about internet. Now internet, I know all of you are familiar with this word. Okay, daily you are using, all the day you are using. Okay, I think if one time you will not eat food it will do, but without net you will all not do. Okay, so you are already aware, you are daily using, but we are going to study about that all its scope, its functions of internet now in this topic. So now this word internet, okay, internet, okay, this is made out of two words. Inter means internal, okay, and net means network. So this internal network means internet. Okay, जो computers का आपस में connected network होता है, okay, for sharing the information, that is known as internet. When the computers are connected with each other to share the information and other source, that is known as internet. Okay, now this internet all of you must be knowing daily, as I told you, you are using, how it is used, what are its benefits, how you can use it for communication, that also you know. Now there are four types of network that we are going to study. First LAN, second CAN, third MAN, and fourth WAN. Now LAN. LAN means local area network. Local area network means that particularly एक area, एक suppose one you can say one business firm is there, in that one department. Okay, उनका कोई एक particular department है. Their computers are connected with each other by the medium of this network, internet. अगर आप एक कंप्यूटर ओपन करोगे, whatever information is that, same information you can find in other information. They are connected by the medium of server, wire से या wireless, they are connected with each other. So that is known as local area network. Next is CAN, campus area network. यानी particularly एक campus होता है. Suppose कोई एक पूरी business organization है, उनकी पूरी building है या कोई एक university है, बराबर, तो उनके अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो देयर कंप्यूटर्स आर आल्सो कनेक्टेड. यू कैन फाइंड द, इफ यू वांट टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ दैट कंप्यूटर, यू कैन फाइंड. सो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उनके ही कैंपस में, दैट इज नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपोलियन यानी सिटी, पर्टिकुलरली कोई एक सिटी होती है, शहर होता है, उसके सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज नोन एज एन मेट्रोपोलियन. नेक्स्ट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क यानी इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ओके, वेदर इट इज इंडिया और ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. वन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दैट आई कैन गिव यू बैंकिंग. ओके, बैंकिंग जो है, इफ आई ओपन अकाउंट हियर एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ SBI, तो मैं कहीं भी जाऊँ, ओके, आउट ऑफ माय सिटी, कंट्री, इफ आई वांट टू नो माय डिटेल्स, अगर मुझे अपनी डिटेल्स चाहिए तो इजीली आई कैन गेट, ओके, क्योंकि उनके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं विद द मीडियम ऑफ इंटरनेट. दैट इज नोन एज एन वाइड एरिया नेटवर्क. ये वाइड एरिया नेटवर्क में भी दो टाइप्स है, एंटरप्राइज नेटवर्क कनेक्शन एंड ग्लोबल. एंटरप्राइज में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जैसे एंटरप्राइज होता है, ओके, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ रेलवेज. ओके, जैसे रेलवेज हैं, उनके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. हमें कहीं भी टिकट बुकिंग करवानी है, वेदर, ओके, इफ आई एम गेटिंग इट फ्रॉम हियर या कहीं और से भी मैं करवा सकती हूँ, कहीं की भी मैं करवा सकती हूँ, बिकॉज देयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. तो पूरा जो उनका एंटरप्राइज है रेलवेज का, उनका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पूरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. सेकेंड उसमें था ग्लोबल कनेक्टेड. ग्लोबली कनेक्टेड यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उनके कंप्यूटर्स हैं या उनका कनेक्टेड होते हैं, दैट इज नोन एज. Now this were these four types of network. Now this internet, all of you are knowing is why it is used and all, but in your textbook mainly these three functions are given. Okay, internet के three main functions दिए हैं, that I am going to explain you. First is contact with other person. Okay, through this internet we can
wheresoever one he is sitting, whether outside the country, you can easily आप उसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हो. Nowadays you are, because of this COVID it is not possible, teaching is also done, okay, Zoom meeting, all that are done with the help of this internet. We can connect any person. Second, receiving the information, okay, from this, with the help of this internet we can get any information whatever you want. Okay, suppose you want to get the information about OC subject, तो easily you can get. Okay, अगर आपके पास मोबाइल है, बराबर, कार्ड भी है उसमें, बट इफ यू आर नॉट हैविंग इंटरनेट, उसका पैक नहीं करा तो विल नॉट बी एबल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन. सो फॉर दैट इंटरनेट इज द मस्ट. नेक्स्ट इज कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट ओनली इट इज पॉसिबल. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया नाउ कि बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, अदरवाइज इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. रेलवेज है, गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट्स होती है, बराबर, वो सब भी आपस में कनेक्टेड होती है ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट. सो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस इंटरनेट. स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दिस फंक्शंस ऑफ इंटरनेट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ वी कैन सर्च द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. हम कैसे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. जनरली डेली यू आर डूइंग, ओके, गूगल पे जाके तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप डेली उस पर कैसे भी ढूंढ सकते हो. इट्स मोर ईजियर फॉर यू. ओके, डेली आप करते ही हो वो प्रैक्टिकली, बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी इट स्टेप्स. तो हम कैसे वो स्टेप्स वन बाय वन कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. उसका फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्राउजर. ओके, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में अलग अलग तरह के ब्राउजर्स होते हैं. ओके, जैसे मॉक्सिला, यूजी ब्राउजर, फायरफॉक्स, एनी ऑफ देम यू कैन सिलेक्ट. उसमें से कोई भी एक आप ब्राउजर सिलेक्ट कर लीजिए. देन इट इज सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजिन. ओके, सर्च इंजिन लाइक गूगल, जिसपे आप डेली सर्च करते हो, इट इज वन टाइप ऑफ अ सर्च इंजिन. तो आप पहले उस गूगल को सिलेक्ट करोगे. देन टू एंटर द इंफॉर्मेशन, जैसे ही आप गूगल का आपके पास आ जाता है तो उसमें एक वाइट बार आ जाता है. ओके, उसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसमें टाइप कर सकते हो. ओके, इन योर टेक्स्ट बुक there is one example given that how to search the information of lion. Now suppose you want to search the information on lion, okay, or you want to search the information about your OC subject. So what you will type OC or you will type lion over there. Now to select the website. Okay, as soon as you type over there lion, so different are types of website. Blue color में जो होती है ना, when you will do it practically, daily आप करते होंगे लेकिन अभी आप practically करके देखना. Okay, तो blue color की अलग अलग वेबसाइट अवेलेबल होगी. उसमें जो whichever you find you like you can click on it. और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे you will get the required information. और अगर आपको उस information के images चाहिए, videos चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन ऊपर अवेलेबल होता है. You can go for that. Okay, and lastly you will get that images, videos, and your search will be completed. So these are the 5 steps to search the information from net. Now here our internet topic is completed. Now we are moving to next important topic, that is e-commerce. Okay, what do you mean by this e-commerce? Okay, the trading done with the help of electronic gadgets and media. Electronic gadgets यानी मोबाइल, कंप्यूटर, okay, with the help of net. So trading done by that is known as e-commerce. Suppose हम मार्केट में शॉप लेके बैठे हैं, कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो that is not e-commerce, बराबर. लेकिन हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं. ओके, ऑनलाइन कस्टमर्स बना रहे हैं, उनको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, सेल कर रहे हैं. ओके, पेमेंट इज ऑल्सो मेड ऑनलाइन. दैट इज नोन एज एन ई कॉमर्स. नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन. ओके, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल दैट वी सी दैट पीपल आर not going to market, so this online business has come forward. So all the trading means purchase, sales, everything is done by this medium. Okay, on with the help of this computer, mobiles and all that. And also in payment also, debit card, credit card, they are used. So that is known as an e-commerce. E-commerce से क्या benefits होते हैं students? कि there is no middleman. Mostly middleman जो होते हैं वो बीच में से निकल जाते हैं, और जो person है, जो seller है, उसे शॉप लेके नहीं बैठना पड़ता है, तो उसके वो एक्सपेंसेस बच जाते हैं. सो वी कैन गेट द प्रोडक्ट एट द लो प्राइस. ओके, आप कई बार ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें काफ़ी डिस्काउंट्स होते हैं, प्राइसेस कम होते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव नॉट टू डू गो फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस लाइक हैविंग द शॉप, एनी मिडल मैन, दे आर रिमूव्ड. सो वी कैन इजीली गेट द प्रोडक्ट एट द कंपेयर्ड लो प्राइस फ्रॉम द मार्केट. वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ दिस फील्ड ऑफ ई-कॉमर्स. ये ई-कॉमर्स कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे? फील्ड, वी कैन से द फील्ड ऑफ ई-कॉमर्स, और यू कैन बी आस्क्ड स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स.
In that both we will write this. Okay, there are 4 types in that: B2C, B2B, C2C and C2B. First is B2C. B2 means B यानी business, to customer, business to customer. Okay, जो businessman है वो क्या करेगा, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या क्या वो डिस्प्ले में रखेगा अपनी वेबसाइट पे। बिजनेसमैन कस्टमर को ऐसे कांटेक्ट करता है, वो अपनी जो वेबसाइट है उस पर सारे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले कर देता है विद देयर प्राइस, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। तो जो कस्टमर होता है वो अपनी चॉइस पे उस वेबसाइट पे जाके उन्हें जो भी परचेज करना है दे कैन गो, दे कैन हैव द चॉइस, दे कैन सी द प्राइसेस, इफ दे वांट एनी इंफॉर्मेशन दे कैन get from there. Best example I will give you like Amazon, Flipkart and all that. Okay, हम उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, सारे उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमें जो भी चाहिए हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो बिजनेस टू कस्टमर। नाउ बिजनेस टू बिजनेस, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, मीन्स जो बिजनेसमैन है वो दूसरे बिजनेसमैन को ही कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, उसमें कस्टमर्स नहीं होते। मैनी टाइम्स कुछ कंपनीज रॉ मटेरियल बनाती है तो वो डायरेक्टली जिन्हें उसकी नीड होती है, जो दूसरे सप्लायर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन को उनकी नीड होती है वो उन्हें सप्लाई करती है। वो मार्केट में वो गुड्स नहीं सेल करते, ओनली इट इज़ फॉर वन बिजनेसमैन इज सेलिंग टू अदर ऑनलाइन ओनली। ऑल दिस इज डन ऑनलाइन। वो अपने वेबसाइट्स पे या अपने जो उस पर इंफॉर्मेशन रखते हैं, स्टेटस एंड ऑल दैट, एंड दे गेट द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर मीन्स यू ऑल मस्ट बी नोइंग। ओके, इसमें कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, कोई सेलर नहीं, जो कस्टमर है वही अपना प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है, लाइक क्विकर एंड ऑल दिस यू मस्ट बी वॉचिंग। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, इफ आई वांट टू सेल, ओके, तो मैं क्विकर और उस पर जाके अपना प्रोडक्ट रख सकती हूँ, उसकी प्राइस रख सकती हूँ, एंड आई कैन गेट द इजिली आई कैन गेट द कस्टमर फ्रॉम देयर। नेक्स्ट इज कस्टमर टू बिजनेसमैन। Nowadays homemade products, okay, chocolates, cakes and many other things. Okay, तो वो लोग जो homemade products होते हैं, they want to contact the businessman. Okay, so through their they can go to their website, they can give their samples, everything online. Okay, they can show their samples and everything, and they can get the work from them. वो businessman को अपने product सेल करते हैं, businessman फिर आगे market में सेल करते हैं। तो यहाँ पे customer to businessman, जो customer है वो businessman को contact करते हैं। So these are 4 types of field of e-commerce. Now today I have explained you these 2 topics. One internet we have completed, another e-commerce. Okay, tomorrow we will continue this e-commerce. Complete your homework is that you have to write whatever I have explained you today. Complete about internet, its functions, okay, its steps, and all this e-commerce, this field of e-commerce. All you have to